Hello dear students, welcome back to our channel All About NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Yes dear student, as you know that we have completed our chapter Some Natural Phenomena, and also we have started part 1 of light chapter, which is completed and already available in your All About NCERT channel. You can go in the playlist. There you can find out Science Class 8th playlist and open that playlist, and then you will find out many videos of your chapters, and this is one of our last chapter of this book. So yes, I am so happy that we are going to complete this chapter. So this is a video which you have to see till the last so that every concept of light is clear to you. And also this video is going to be very easy because this will contain both two languages, which is Hindi as well as इंग्लिश. तो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर जो है कम से कम इधर तक जो है हमने कर लिया था, राइट. हमें आज करनी है एक्टिविटी 13.5 और साथ ही साथ 13.6. तो फटाफट मैं 13.5 आपको करके दिखाती हूँ. ओके, सो नाउ टेक टू प्लेन मिरर्स, सेट दैम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. राइट एंगल्स मतलब डियर स्टूडेंट आपको इनको ऐसे रखना है जिससे कि ये 90 डिग्री बनाए, ठीक है, विथ ईच अदर विथ देयर एजेस टचिंग. टू हैंग दैम यू कैन यूज़ एडवाइस टेप, ताकि आप उन दोनों को जोड़ सको, इसलिए आप ट्रांसपेरेंट टेप ले सकते हो. एडहेसिव टेप का मतलब यही होता है डियर स्टूडेंट्स दैट यू कैन टेक ट्रांसपेरेंट टेप. ओके, जो नॉर्मल टेप होता है, यू कैन टेक दैट. ओके, देन प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर्स. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी. तो आपको एक कॉइन को रखना है मिरर के बीच में, तो आप कितनी इमेजेस देख सकते हो मिरर की, राइट डियर स्टूडेंट. Now how many images the coin you can see. Now see dear student, what will happen. Image in the plane mirror at the right angle जैसे लगाया है. Now hinge the mirror using adhesive tape at different angles, say 45 degree, 60 degree, 120 degree, 180 degree. अलग अलग एंगल्स से आपको उनको अटैच करना है, मतलब एक साथ नहीं दिया student, अलग अलग बार, ठीक है. Then place some objects, say candle in between them. एक ऑब्जेक्ट कैंडल को जैसे आप रख सकते हो उनके बीच में. And then what will happen? Note the number of images formed by this. Now finally set the two mirrors parallel to each other. Find out how many images of a candle is placed between them are formed. तो पैरेलल रख के भी आपको देखना है, ठीक है. Can you now explain how you can see the back of your head of the dresser's top. तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो कि कैसा आप देखते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है एक बार रिफ्लेक्ट होके फिर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको आराम से इमेज दिख रही है, राइट. सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वेल. नाउ सी द, जब आप इसे खुद करके देखोगे ना डियर स्टूडेंट, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो प्लीज़ डू द एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द एनसीईआरटी. दीज एक्टिविटी विल हेल्प यू टू just understand your concept. Okay, now see the idea of number of images formed by the mirror placed at an angle to another is used in the kaleidoscope. Now see kaleidoscope to make numerous beautiful pattern. तो बहुत सारे beautiful pattern बनाने के लिए हम kaleidoscope से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है dear student. You can also make a kaleidoscope yourself. Okay, now see, to make a kaleidoscope, take 3 rectangular mirror strips, each them about 15 cm long and 4 cm wide. Join them together to form the prism. आपको prism बनाना है. Okay dear sir, I wanted to ask one question to all of you, that what is the difference between prism and pyramid. If you know this, so please comment me in the comment box. Okay, now see, then we have fixed the arrangement of the mirrors in the circular cardboard tube or tube of a thick chart paper. Make sure that the tube is slightly longer than the mirror strips. Choose one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center through which you can see. To mark the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard disc. At the other end, touching the mirrors, fix a circular plain glass plate. Place on this glass plate several small pieces of colored glass, broken pieces colored bangles. Now choose the end of the tube by ground glass plate. Allow enough space to color the pieces to move around. Okay,
So this is something that is your kaleidoscope. So yes, you can see, dear student, this is very easy to make, राइट. तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है, उसको जॉइन करना है टुगेदर और आपको प्रिज्म जैसा फॉर्म करना है. ओके ओके डियर स्टूडेंट. देन आपको सर्कुलर कार्डबोर्ड जो है उसको लगाना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है. तो ऐसे करके आपको एक्टिविटी करनी है जिससे आपका जो कैलिडोस्कोप है वो बन जाएगा. व्हेन यू विल पीप थ्रू द होल, जब आप होल से पीप करोगे, यू विल बी एबल टू सी वेराइटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब. इन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द कैलिडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन. आप कभी भी सेम पैटर्न नहीं देखोगे. डिज़ाइन ऑफ द वॉल पेपर एंड फैब्रिक्स एंड द आर्टिशियंस ऑफन यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडियाज़ फॉर न्यू पैटर्न, ताकि उनको न्यू पैटर्न्स मिल सकें, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव, यू कैन रैप द कैलिडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर. आप कलर्ड पेपर में से रैप भी कर सकते हो, ठीक है. नाउ आई हैव वन मोर थिंग विच इज़ activity. This dispersion one activity is there, so let's do it. Now get a plain mirror of the suitable size. आपको suitable size का mirror लेना है, okay, and place the bowl कटोरी as shown. आपको ऐसे कटोरी रख देनी है, ठीक है. Then what you have to do, put this arrangement near the window in such way that the direct sunlight falls on the mirror. कि direct sunlight आपकी mirror में fall करती हो, ऐसे आपको करना है, ठीक है dear student. Adjust the position of balls so that the reflected light from the mirror falls into the wall. तो आपको कुछ इस तरह कटोरी को रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से आ रही है वो सीधे वॉल में जाए, जिससे क्या हो डियर स्टूडेंट, आपको डिस्पर्जन मिल जाए, ठीक है. नाउ सी what will happen, that just the position of the ball, this I have already told you. If the wall is not fixed, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन इट. आपको वाइट पेपर उसमें लगाना है ताकि आपको और अच्छे से दिख सके क्लियरली. नाउ सी, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स. आपको रिफ्लेक्टेड लाइट से दिखेगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट के पास कितने सारे कलर्स हैं डियर स्टूडेंट. 7 कलर, जिसको हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं. ये विबग्योर इज़ ईजी वन ना, इससे आप आराम से याद कर सकते हैं. विबग्योर. वेट, इधर ये फिट नहीं आ रहा है. लेट मी राइट इट हियर. विबग्योर. एंड हाउ डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. So this is something I wanted to tell you. Okay, so now see what you have to do. How can you explain this? The mirror and the water form prism. As you learnt in class 7th, आपने 7th में ही पढ़ा था कि dispersion of light होता है, something which you know, right? So now see, splitting of light into its color is known as dispersion of light. Rainbow is natural phenomena showing dispersion. Rainbow में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है लाइट का. सन एक जगह होता है, बारिश एक जगह होती है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका आता है, ठीक है, जिससे आपका जो रेनबो होता है वो फॉर्म होता है. दिस इज़ ओनली द रीज़न डियर स्टूडेंट बिहाइंड इट. ओके, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट यानी कि जब आपकी लाइट अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, उस चीज़ को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं डियर स्टूडेंट. आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू ऑल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द 7th standard, right? Now see, sunlight white or colored. In class 7 you learn that the sunlight is referred to as white light. Sunlight white light होती है. You also learn that it consists of 7 color. वो 7 color consist करती है. Here is another activity. यहाँ पे एक और activity है 3.7 जो हमने कर ली है, showing that the sunlight consists of several colors. इसमें हमें पता चला कि sunlight बहुत सारे colors indicate करती है. And the best way to learn these color name is, I have already told you, Vibgyor. What? Vibgyor. Now see what is inside our eyes. हमारे आइज़ के इनसाइड क्या होता है डियर स्टूडेंट? वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम
एंटर्स आर आइज। हम तभी थिंग्स को देख पाते हैं जब जो लाइट है वो हमारी आंखों में जाती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, राइट। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसलिए ज़रूरी होता है डियर स्टूडेंट, ताकि हम ये समझें कि भाई आई वर्क कैसे करता है, ऐसा क्या है आई में जिसकी वजह से हमें ये दिखता है। दीज आर सर्टेन क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड सो दैट यू आर और मोर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। ओके, नाउ सी, आई हैज़ अ रफली स्पेरिकल शेप। आई के पास पहले कैसा शेप होता है? स्पेरिकल। कैसा शेप होता है डियर स्टूडेंट? स्पेरिकल। आई वांट टू टेल यू अगेन, स्पेरिकल शेप। ओके, नाउ सी द आउटर कोट ऑफ आई इज वाइट। आपने देखा होगा ना, जो आउटर कोर होता है वो वाइट होता है। ओके, इट इज टफ so that it can protect the interior of the eye from the accidents। वो टफ होता है, वो टाइट होता है ताकि वो इंटीरियर जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके एक्सीडेंट से। इट इज़ ट्रांसपेरेंट फॉन्ट पार्ट, इट्स ट्रांसपेरेंट फॉन्ट पार्ट इज कॉल्ड क्रोनिया। जो इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट होना है डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग क्रॉनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉनिया। बिहाइंड क्रॉनिया वी फाइंड डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। और क्रॉनिया के जस्ट बिहाइंड, यानी कि बिहाइंड में हमें एक चीज़ दिखती है जिसको हम कहते हैं क्या? आइरिस। एंड देन इफ आई टेल यू is in the iris there is a small opening called pupil। और एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के जस्ट आगे, ठीक है। आइरिस में ही आप समझ लो एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, पीपल। नाउ सी, इट इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट अ डिस्टिंक्टिव कलर। आइरिस एक ऐसा पार्ट होता है डियर स्टूडेंट आई का जिसकी वजह से हमें आई का कलर मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे किसी की ब्लू कलर का आइरिस है, सो ही और ही विल गेट द आई एस, आई का जो प्यूपिल होगा वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। आई को डिस्टिंक्शन कलर्स देता है। देन इफ समवन्स आइरिस इज ऑफ ब्लैक कलर, शी और ही विल गेट ऑफ ब्लैक। ओके, नाउ सी डियर स्टूडेंट, when we say that the person have green eyes, we refer actually to the color of iris। आइरस का कलर वैसा है, तभी उसके पास आई जो है ग्रीन कलर की। ओके, द आइरस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आइज। तो आइरस ही कंट्रोल करता है कितनी लाइट हमारी आंखों में आ रही है। लेट अस सी हाउ, कैसे करता है। नाउ सी, कॉशन फॉर दिस एक्टिविटी, नेवर यूज लेज़र टॉर्च। इस एक्टिविटी के कभी भी आप लेज़र टॉर्च मत यूज़ करना डियर स्टूडेंट। इट कैन कॉज डैमेज टू योर आइज। दैट्स वाई द कॉशन आर गिवन समटाइम्स इन द एक्टिविटीज। ओके, लुक इन टू योर फ्रेंड्स आइज। Observe the size of the pupil through a light on her eyes with the torch। टॉर्च लाइट डालो और देखो। Observe the pupil now। अब आप pupil को देखो। Switch off the torch and observe a pupil again। Do you notice any change in the size of pupil? क्या आपको कोई चेंज दिखा डियर स्टूडेंट? ये एक्टिविटी बहुत लोगों ने करी भी होगी आई थिंक। Do you notice any change? In which case was the pupil larger? Why do you think was so? कौन से केस में pupil जो है वो लार्ज होगा? In which case do you need to allow more light in the eyes when the light is dim or bright? कौन से केस में आपको ज़्यादा लाइट आँख में डालनी पड़ेगी, right? Behind the pupil of eye is a lens which is thicker in center। प्यूपिल के बिहाइंड ही जस्ट आपकी लेंस होती है जो कि थिकर होती है इन द सेंटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर इन द सेंटर? कौन सी काइंड की लेंस जो होती है थिकर होती है सेंटर में डियर स्टूडेंट? रिमेंबर लाइक दिस स्ट्रक्चर। बताओ ये किस में होता है? या आई नो दैट यू ऑल नो द आंसर बिकॉज ये कुछ चीज़ थी जो वी हैव ऑलरेडी रेड। ओके, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द back of the eye on a layer called retina। और एक आपकी लेयर होती है जो कि है रेटिना डियर। यू कैन सी रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल। रेटिना के पास बहुत सारे जो होते हैं नर्व सेल्स होते हैं। ओके, सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड इनटू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन में भेजे जाते हैं किसकी मदद से डियर स्टूडेंट? विद द हेल्प ऑफ द रेटिना। ओके, ये रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल होते हैं। जब भी सेंसेशन फील होती है नर्व सेल में, वो तुरंत ब्रेन में ट्रांसफर होते हैं थ्रू द
ऑप्टिक नर्व. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल. कौन सी काइंड की सेल होती हैं? एक होती है कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रोड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. ठीक है. कौन सेंसेस कलर. कौन जो है सेंस कलर भी करती है एट द मतलब कौन सा कलर है ये पूछ लेना. इट at the junction of the optic nerve and the retina there are no sensory nerve. कोई भी सेंसरी सर्व उसमें नहीं है. सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट. उस विजन में कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होता है. कहाँ पे? एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. तो ये कौन सा स्पॉट होता है डियर स्टूडेंट? ब्लाइंड स्पॉट. इट्स एग्जिस्टेंस कैन डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलो. इसका एग्जिस्टेंस हमें दिख सकता है डियर स्टूडेंट. यहाँ पे देखो. मेक राउंड पेपर राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन द शीट ऑफ पेपर with the spot to the right of the cross. The distance between two marks may be 6 to 8 centimeter. Hold a sheet of paper at an arm's length off from the eyes. Choose your left eye. Look continuously at the cross. Move the sheet slowly towards you, keeping your eye on the cross. What do you find? Does the round mark disappear at the same point? Now close your right eye. Look at a round mark now and repeat the activity. Does the cross appear? The disappearance of the cross or the round mark shows that there is point in the retina which cannot send message to the brain when it light falls on it. ऐसा पॉइंट रेटिना में होता है डियर स्टूडेंट जो सिग्नल नहीं भेज सकता है फ्रेंड को जब उसमें लाइट आती है. That is the something that I wanted to tell you, which is the blind spot. That's why dear students, it's very necessary to do all kinds of activity which are given in the NCERT. So your all doubts are clear. Okay. Now see, the impression of an image does not vanish immediately from your retina. जो impression होते हैं इमेज के वो तुरंत vanish नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते from the retina. It presses there for about 1 to 6th of the second. 1 to 16 second तक वो रहते हैं. So if still images of moving object are flashed on the eyes at the rate faster than 16 per second, then the eye receives the object as moving. तो तब जो होता है डियर स्टूडेंट देखो क्या होता है ना डियर स्टूडेंट. यहाँ पे देखो द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज, यानी कि क्या होता है आपकी जो इमेज का इम्प्रेशन होता है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता रेटिना में. रेटिना क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज पार्ट कॉल्ड रेटिना. सी इट वेरी केयरफुली. ये पार्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं. आई होप दैट दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर टू ऑल. ठीक है. अब देखो इम्प्रेशन रहता है. इट प्रेसेस देयर फॉर अबाउट 1 to 16 सेकेंड. 1 to 16 सेकेंड तक होता है. सो इफ द स्टिल इमेज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन आइज. लेकिन अगर फिर भी मूविंग ऑब्जेक्ट की इमेज फ्लैश्ड हो रही है एट द रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड और ज़्यादा तेज 16 पर सेकेंड से, देन वी कैन से देन हमें ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है. तब तक हमें वो नहीं लग रहा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. लेकिन जब उसकी 16 पर सेकेंड से रेट फास्ट हो रहा है और वो हमें स्टिल दिखाई दे रहा है, देन वी कैन कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग. तभी हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट. जैसे कार मूव कर रही है लेकिन वो 16 पर सेकेंड से ज़्यादा तेज मूव कर रही है, राइट. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दैट कार इज मूविंग. सेम दिस ओनली हैपन्स इन द आइज विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू डियर स्टूडेंट. क्या होता है आप देखते हो ना आपकी कार मूव कर रही है, तो आपकी जो कार मूव कर रही है आपको कैसे दिख रहा है? क्योंकि आपकी जो रेटिना है ना उसमें इंप्रेशन कब तक रहते हैं? 16 सेकंड तक. लेकिन अगर स्पीड जो है फास्टर देन 16 सेकंड हो जाती है और आपको ज़्यादा देर तक दिख भी रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो बस आपको ये मान लेना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग में है. आपको खुद ही दिखता है कि भाई वो ये तो ऑब्जेक्ट मूविंग में है, मोशन में है, राइट. नाउ सी एक्टिविटी 13.10 विच इज गेट अ स्क्वायर piece of cardboard of size 6 to 8 centimeter. Make 2 holes as shown. ऐसे आपको holes बनाने हैं. Shown thread string through the 2 holes. Draw paste a cage on one side of the cardboard and the bird on the other side. Twist the string and make the card twirl rapidly. Do you see bird in the cage? क्या आपको bird दिख रही है केज में? इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 स्क्वायर लेने हैं और 2 होल बनाने हैं. एक होल में क्या होना है डियर स्टूडेंट, एक केज में आपको
कार्डबोर्ड में बर्ड को स्टिक कर देना है, ठीक है, और दूसरी में आपको कार्डबोर्ड को ही ट्रिल करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो बर्ड है वो केज में आ गई, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। मूवी डेट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट इमेजेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। मूवी जो हम देखते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग इमेज पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड। 24 पिक्चर पर सेकेंड में हमें दिखाया जाता है, ताकि हमें फास्टर देन 16 पर सेकेंड, तो हमें लगता है कि वो जो चीज़ है वो मोशन में, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग डियर स्टूडेंट, कैसी फेक होती है मूवीज़, राइट। सो नाउ सी, सो वी सी द मूविंग पिक्चर, हम तभी हमें मूविंग पिक्चर दिखती है, ठीक है। नाउ सी, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विथ आई लीड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग आई। तो नेचर ने हमें आई लीड्स भी दिए हैं ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आँखों में जाने से बच सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी, आई लीड्स ऑल्सो शट डाउन द लाइट व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब हमें नहीं चाहिए होती है लाइट तब वो शट हो जाती है, शट आउट कर देती है, ठीक है, आई लीड्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाय। हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएसएलआर हमारी आँखों की वजह से, राइट। Now see what is written. The minimum distance at which an eye can see object distinctly varies with age. Age में vary करते रहता है, okay. The most comfortable distance at which we can read with a normal eye is about 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट, जिससे कि हम नॉर्मली रीड कर सकें, ठीक है। Some persons can see the object close to them clearly but cannot see the distant object so clearly, right. On the other hand, some person cannot see object nearby. कोई ज़्यादा पास से नहीं देख पाते लेकिन दूर से क्लियरली देख लेते हैं, राइट। नाउ सी, बट दे कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल, राइट, विद सूटेबल करेक्टिव लेंसेज। दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। इसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन द ओल्ड एज आई साइट बिकम फॉगी, कभी कभी फॉगी दिखता है, मतलब धुंधला धुंधला, ओके। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी, हमारी आई लेंस धीरे धीरे क्लाउडी बन रही है। When it happens, persons are said to be cataract. There is a loss of vision. ऐसे लोगों का loss of vision हो जाता है, sometimes extremely severe. It is possible to treat this defect. The opaque lens is removed from the new artificial lenses inserted. एक new artificial lens हम insert कर देते हैं और वाली lens जो होती है उसको हम निकाल देते हैं। अब now see, modern technology has made it produce सो दिए स्टूडेंट, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उन्होंने इसको प्रोसीडर सिंपलर एंड सेफ, यानी कि इसको बहुत सिंपलर मेथड और सेफ मेथड बना दिया है, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन केयर फॉर आवर आइज़, राइट। हमें इतनी चीज़ें बताई कि भाई आइज़ जो है इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, बट हाउ वी कैन सेव आवर आइज़, हाउ वी कैन केयर फॉर इट, राइट, बिकॉज केयरिंग इज समथिंग दैट वी हैव टू डन फॉर आइज़, बिकॉज आइज़ is a very important sense organ, right. Without eye we cannot even live, right, because eye is something that help us in many things. It is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem you should go to an eye specialist. जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है डिस्नो आई से संबंधित तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। हैव अ रेगुलर चेकअप। इफ़ एडवाइस यूज शूटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर साइड होता है तो अपने स्पेक्टिकल्स, अगर आई वीक हो गई हैं तो अपने स्पेक्टिकल्स को यूज़ करा करो, ठीक है, मतलब आपके चश्मे। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। अगर ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आँखों के लिए गंदी होती है। इनसफिशिएंट आइज लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन या हेडेक्स भी होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है, आई ट्रेन होने लग जाता है। सो यू हैव टू नॉट यूज़ इनसफिशिएंट लाइट, ओके। ज़्यादा लाइट को इस्तेमाल मत करना, ठीक है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, a powerful lamp और laser torch can injure retina. इससे रेटिना आपका इंजर हो सकता है, राइट। ब्लाइंड स्पॉट कहीं ना कहीं डिस्टर्न आ सकता है। डू नॉट लुक एट सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली।
नेवर रब योर आइज, आप कभी भी अपने आँखों को रब मत करिएगा। इससे क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, आपका जो आँखों का ब्लड प्रेशर होता है इट इंक्रीजेज और आपकी आँख धीरे धीरे लाल होने लग जाती है, राइट। सो इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर, टैप वाटर से नहीं, बिकॉज टैप वाटर कंटेन so much of salt in it. Tap water can conduct electricity also. We have learned in the chapter chemical effects of electric current. So dear student, I want that you don't rub your eyes. If your eyes has got any dust particles, just wash with clean water. Clean water means pure water, okay, not the water which is already containing so much salt and very dust particles in it, right? Tap water, right? So now see, if there is no improvement, so go to the doctor. अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर अ विजन. जैसे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, रीड विद द 25 सेंटीमीटर. ओके, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज. इतना क्लोजली अपने बुक को आगे से नहीं लाना है. प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए आँखों के बीच में और आपकी बुक के बीच में, ठीक है डियर स्टूडेंट. नाउ सी, यू लर्न अबाउट द बैलेंस डाइट इन क्लास 6. आपने क्लास 6 में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर में, ठीक है डियर स्टूडेंट. इफ फूड इज डिफिशियंट इन सम कॉम्पोनेंट्स, आइज में ऑल्सो सफ़र. अगर फूड थोड़ा सा भी कम होता है कोई भी कॉम्पोनेंट्स, तो आइज को भी इससे सफ़र हो सकता है. Lack of vitamin A in food stuff is responsible for many eye troubles. Eye troubles हमारा less which materials? It is vitamin A, right? So now see, most common amongst them is night blindness. अब आपको night blindness भी हो सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट है, वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन डाइट कॉम्पोनेंट विच है विटामिन ए. विटामिन ए होना चाहिए आपके डाइट कॉम्पोनेंट में. Raw carrot, broccoli and green vegetables such as spinach and cod liver oil are rich in vitamin A. Eggs, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. तो ये सारे फूड भी विटामिन ए में रिच होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यू शुड डेफिनेटली ईट दैम. इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपकी जो आँखों में ट्रबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. Now see, visually impaired persons can read, which is we will learn about Bradley system, and this is very interesting part dear student. Let's get started. Now visually impaired people वैसे लोग होते हैं dear student जिनको अपनी आँखों से चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, which are not able to see the single word by their eyes. Okay, now see, these can be from their birth only or due to some trouble in their eye problems. Okay, now how then they read? Okay, because eye is something that help us to read everything, right? Some persons including children can be visually impaired. Children, बच्चे या कोई बड़े लोग भी visually impaired हो सकते हैं, which means that they are not able to see. So now see dear students, some person may lose their eyesight because of disease or an injury. Such persons try to identify things by touching and listening to the voices more carefully. वो voices को ज़्यादा अच्छी तरह सुनते हैं और अपने senses का इस्तेमाल करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, listen करते हैं voices को अच्छी तरह, ताकि उनको अच्छी तरह चीज़ें सुनाई दे, identify कर सकें उस चीज़ों को. They develop their other sense more sharply. जैसे उनकी senses होते हैं ना, जैसे touch करके वो ज़्यादा उनका हो जाता है develop. Then however additional sources can enable them to develop their capabilities further. उनकी capabilities further और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर वो क्या करते हैं, additional sources को भी डालते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है. Now see dear student, what is it? Non-optical and optical aids for visually impaired. Okay, now see, non-optical aids include visual aid. जो non-optical aids होते हैं dear student, वो visual aids को लेते हैं. टेक्चुअल एड यूजिंग सेंस ऑफ टच, टेक्चुअल एड हो गई, या आपकी जैसे होती है ना ईयरिंग की, वो मतलब आप कितना अच्छी तरह सुन रहे हो. ऑडिटरी एड्स मतलब सेंस ऑफ ईयरिंग वो यूज़ कर सकते हैं. देन इलेक्ट्रॉनिक एड्स होती हैं. विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाइंग द वर्ड्स मैग्नीफाई कर सकते हैं. सम प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट द प्रॉपर डिस्टेंस. टेक्चुअल एड इंक्लूडिंग
बैरले सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा डियर स्टूडेंट. ओके, राइटर स्लेट एंड स्केच ल्यूज हेल्प इन विजुअली चैलेंज पर्सन टू टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग. वो भी लिख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं. कौन से सिस्टम से? बैरले सिस्टम से डियर स्टूडेंट. वेरी हेल्पफुल सिस्टम. देन वी हैव ऑडिटरी एड्स इंक्लूड cassettes, tape recorders, then we have talking books, then other such devices, right? Electronic aids such as talking calculators and computers are also available for performing many computational tasks. Closed circuit television also an electronic aid enlarges the printed material and the suitable contrast. मतलब ये सारी चीज़ें डिजिटल. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑडिटरी एड्स मतलब सुनने का जो आपका पैचिंग पावर होती है. रिकॉर्डर से आप कितनी चीज़ें सीख सकते हो, राइट? देन इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एड, जैसे कैलकुलेटर से टॉकिंग करना, कंप्यूटर्स में परफॉर्म करना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें ABCD के लिए बड़े बड़े बटन्स होते हैं, राइट? सो दे कैन लर्न बाय दिस सिस्टम. व्हाट विल हैपन ना, दे विल इवेंचुअली डेवलप देयर स्किल्स. ओके, nowadays audio CDs and voice boxes with computers are also very helpful, right, for listening to and writing the desired text. Optical aids, if I tell you, include the bifocal lenses, right, contact lenses, tinted lenses, then magnifiers, then telescopic aids, right? सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट जिनसे विजुअली इम्पायर्ड पीपल वेरी हेल्पफुल, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. ठीक है, वाइल द लेंस कॉम्बिनेशन आर यूज टू रेक्टिफाई द विजुअल लिमिटेशन. टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू द चॉक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन. तो ये थी कुछ चीज़ें डियर स्टूडेंट जो आई वांटेड टू टेल यू. टेलीस्कोपिक एड्स जैसे डियर स्टूडेंट चॉक बोर्ड को व्यू करने के लिए, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ करी जाती है. Now see what is Berle system. Berle system क्या है? It's a very interesting one. Okay, the popular source for visually challenged person in Berle. Louis Berle himself visually challenged person. ये भी visually challenged person थे. Develop a system for visually challenged person. उन्होंने अपनी जैसे visually चैलेंज पर्सन के लिए इतना अच्छा सिस्टम निकाला 1821 में. देन द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932 में. 1932 में ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था. देयर इज़ अ बैरले कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशन. इसके लिए आपके कोड्स होते हैं. मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग बैरले सिस्टम. इससे बैरले सिस्टम से हम बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं सीख सकते हैं. मैनी इंडियन लैंग्वेजेस भी हम सीख सकते हैं. बैरले सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और करेक्टर्स. 63 डॉट पैटर्न्स या करेक्टर्स होते हैं. ईच करेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन. ये सारी चीज़ें ये डोनेट करता है. अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉमन वर्ड, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये बैरले सिस्टम इंक्लूड करता है. यस, सो नाउ सी डियर स्टूडेंट व्हाट इज इट. Dots are arranged on the cell of 2 vertical rows in 3 dot C's. 3 dot C जो होते हैं और 2 vertical rows are there. Patterns of dot to represent some English letters are common words shown हैं. जैसे cat को represent करना है, C के लिए 2 dots, then 1 A के लिए 1. Then if I talk about T, there are 4 dots. Okay, मतलब column dear student you all are understanding there are 2 vertical rows of 3 dots each. 3 dot each होते हैं. ठीक है ना. सी एंड कॉमा जैसे एंड के लिए दे आर यूजिंग 5 dots, राइट. कॉमा के लिए 2 dots. दिस इज समथिंग दैट वाज Berle system डियर स्टूडेंट. ओके, द पैटर्न विच embossed on Berle sheets help in visualizing the challenged person to recognize words by touching से वो रिकॉग्नाइज कर सकते थे वर्ड्स को. और इसके ये इनका लिए बहुत ईजी बना देता था विजुअली इम्पायर्ड पीपल के लिए. Visually impaired people learn Berle system by beginning letters, then special characters and then letter combination. धीरे धीरे स्टार्ट कर letters से, फिर characters से, फिर combinations से, right? Then they start reading, writing by just touching it. Isn't it very exciting system, right? Characters has to be memorized. Berle text can be produced by hands or by the machine. Typewriters like devices and printing machines have now been developed. सिर्फ Berle system की. Dear student, can you imagine how interesting this system was? Some visually impaired Indians have great achievements and their credit. Divakar, the child prodigy
has having amazing performance as singer. तो singer that isn't, even he is a visually impaired. But can you imagine this? The Ravindra Jain, born completely visually impaired, obtained his Sangeet Prabhakar degree from Allahabad. Can you imagine that? He was visually impaired, dear student. वो बिल्कुल देख नहीं सकते थे. But then also they have, achieved these all things. Isn't it so exciting? Isn't it so achievement? Right? Excellence art, lyrics, then English singer and music composer, then Lal Advani himself visually impaired, established an association for special education and rehabilitation of disabled in India. Besides, he also represented India in Ballet problems in UNESCO. Dear student, can you imagine? ये सब लोग अपने तो विजुअली इम्पायर्ड हैं ही, लेकिन दूसरे अपने जैसों के लिए they are doing many such great thing, right? Lal Advani have opened the very good association for special education, right, dear student? Now if we talk about Helen Keller, an American author and lecturer, dear student, can you imagine? Lecturer जो कि बचपन से ही विजुअली इम्पायर्ड थी. शी वॉज नॉट एबल टू हेयर ऑल्सो वेरी नाइसली, बट देन ऑल्सो यू कैन सी हाउ मच अचीवमेंट शी हैव डन. But because of her resolve and courage, she could complete the graduation from a university. She wrote a number of books, including The Story of My Life in 1903 में. और उसने अपनी साइट कब खोई थी डियर स्टूडेंट? 18 months old, जब वो सिर्फ 18 months की थी. So this is something that was very interesting. So that's just when we have completed our chapter, and now I wanted to say bye bye to all of you so that we can meet in our next video, in which I am going to bring question answers for all of you, and the question answers will be very exciting of this slide chapter. We have just completed in our 2 parts. So yes, only in 2 parts we have completed, and both the parts are not more than 30 to 36 minutes. So please get it subscribed our channel, because we bring these types of videos only for you, and subscribers, because we get motivation from you to make more videos. Okay dear student, bye dear student, have a nice day ahead. Bye.